everybody. I welcome you to the 17th year of Beti. Well, actually 17th year in the sense that we started it 17 years ago, and at that time the focus was on female feticide, because that is what when the UNFPA, somebody had approached me to say that the ratio in India is terrible, girls versus boys. So if we could do something about it. It took me about maybe 6 months or a year to even know what female feticide was, but then yes, we did get started. And I got a lot of my friends from the industry to support it in the way of such events, because these events are just byproducts and they're to grab attention, but the focus is on the issue itself. And there was everybody who said yes instantly, to the extent that 3 years later, I was called by the director of the UNFPA to say that the ratio in India was improving because there were a lot of people talking about it from the industry. So therefore, post that, we have concentrated on the fact that every event I do has people from the industry to talk about the issue, because people listen to them, listen to all of you. You know, whatever you say and do, they follow. And therefore, Beti has now reached 17 years. Later, we've done a lot of medical help for a lot of people, but now main focus is on education. And this year we've got 323 students we're educating. And today, you will meet some of them who have stood in the first, second, third, and 80% plus in the last year in SSC and HSC. So what I would like, honestly, is to insist, actually, more than just request. I've been requesting for many years. But now I would want all of you here to talk about the fact where you can do a little bit of something for the girl child, because that is our future. And then you know what happens is, the minute you contribute some, everybody is an NGO in themselves, because you are taking out of your time, energy, money to ensure that the not so privileged have the advantage that we as the privileged do. So I request you all to please happily talk about Beti, ensure that girls are educated, ensure that the future of our country is really, really fabulous at the way we are going. And it's a pet project of the Prime Minister, is Beti Bachao, Beti Padhao. And हम लोग कर रहे हैं वैसे भी इसको, I think, कितने सालों से, and we shall continue doing so. So I thank you all. इस वक्त हमारे साथ हैं अनुरंजन, जिन्होंने इतने सालों से बेटी मूवमेंट को कंट्रीब्यूट किया है, इनिशिएट किया है. इस साल भी हम वही देख रहे हैं. कितना अलग होने वाला है और कितना स्पेशल है आपके लिए? See, हर साल स्पेशल है because जो भी कोई आता है, they come to support the cause. And every year there are more and more people in the sense के who give time, energy, जो आते हैं हमारे लिए, just to ensure कि the message सब जगह जाए कि बेटी बचाओ मतलब बेटी को पढ़ाओ. तो बेटियां पढ़ाने के लिए ये सारे जो लोग आ रहे हैं is a feeling itself that yes, people really believe that it's time now कि एक एक लड़की इस देश में should be educated, and that is what Beti is all about. इस बार क्या अलग प्लानिंग हुई है, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं? सी, ये तो छोटे बच्चे हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, who have stood first, मतलब 80+ जिनको आया है SSC और HSC के, इसलिए उनको सबको बुलाया गया because they've done such a special job. So encourage them that and the others कि आप अच्छा करोगे, so you're part of a special thing. और देखना चाहिए उनको भी, because they have to grow up and see the world. They can't be hidden where they are, and that is the reason for bringing them here, and they're very happy. कि सब जगह मतलब सबको देख रहे हैं आपने, मैं तो फोटो लेने में खुश है, बट ठीक है. जी, ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे टीवी के सेलेब्स आए हैं, अनुष्का है, आदित्य है, सो क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? आज रखनी चाहिए. आप शो देखिएगा और आपको देखिएगा कि काफ़ी लोग हैं who are again supporting it. एंड ये फैशन शो तो ये एक तरीका है जस्ट टू इंश्योर कि हमारा जो मेन वर्ड है गेट्स आउट टू पीपल. सो वी क्रिएट इवेंट्स जिससे लोग इकट्ठे होते हैं. नहीं तो क्या है ना कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू थिंग्स, दे डोंट नो कैसे करना है, कहाँ करना है. तो इधर क्या है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री कम टुगेदर एंड स्प्रेड द वर्ड कि दिस इज़ वॉट वी ऑल फील स्ट्रांगली अबाउट. जैसे आई रिमेंबर हमने फीमेल फीटिसाइड अवेयरनेस मैंने शुरू की थी 2006 में. And that time I was working on behalf of the UNFPA, who had told me to do this. And they told me 2-3 years later, उनके director ने कहा था, because so many celebrities started talking about it, कहते हैं the word is spreading. And that is how, because these people, all of them have people who are there, who listen to what they have to say.
एंड इसी तरीके से मैसेजेस गो अक्रॉस. सो इट्स अ गुड. तो ऐसे में 15 साल से सास बहू और बेटिया की टीम जो है वो हर साल ये कवर करती है. हाउ डू यू सी दिस? Well, now you got to see how you're going to cover it. I'm going to give you how it is, and I want you to spread the word also that Beti ko bachana, Beti padhana. This is our Prime Minister's special pet project, and I'm glad that we are a small part of it, and hopefully we can get as many and many people on board to support this. ऐसे में हमने देखा काफ़ी BTS भी कि किस तरह की तैयारी आप कर रहे थे, कितनी मेहनत लग रही थी. सो ओवर एंड ऑल अगर एक राउंड फिगर पूछा जाए तो कितने दिनों की मेहनत है ये? See, round figure ने mostly television, this phone calls and there is coordination जो चलती रहती है, which the office does. ये मैं नहीं बता सकती कितने दिन है, but इतना नहीं है कि जैसे लगता है. It's not so much of effort. IT is a different story, but this is not so much of an effort. It's more voluntarily from everyone. It's a phone call and they say yes, we are a part of it. So that makes it easier. ऐसे में बहुत सारे सेलेब्स आने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस इवेंट के लिए क्या स्पेशली आपने खुद को किस तरह से स्टाइल किया? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घर के अपने कपड़े तैयार होके मैं आ गई हूँ बस. मेरे को 5 मिनट था तैयार होने के लिए, so I'm ready now in 5 minutes. थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बीते कई सालों से बेटी मूवमेंट को सपोर्ट करते आए हैं, इनिशिएट करते आए हैं शशि रंजन. आपसे जानना चाहूँगी कि इस साल कितना अलग है, कितना स्पेशल और कितनी मेहनत लगती है? देखिए, अलग तो नहीं है क्योंकि 17 साल से हम सिर्फ यही काम करते हैं कि बेटियों को सामाजिक न्याय मिले, उन्हें जो भी फील्ड के अंदर वो कुछ करना चाहती हैं हम उनकी मदद कर सकें, और समाज की जो कुछ बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, उससे जो पीड़ित लड़कियां हैं उनकी हम मदद करें. तो 17 साल से हम एजुकेशन के फील्ड में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ उसके लिए काम कर रहे हैं. अब तो प्रधानमंत्री का भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है देश को. लेकिन हमने 17 साल से, चाहे वो एसिड विक्टिम रही हों, चाहे वो किसी और सोशल इविल की विक्टिम रही हों या एजुकेशन हो, हमने हर जगह जो है अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़कर इन बेटियों की हेल्प की है. और मैं शुक्रगुजार हूँ टेलीविज़न इंडस्ट्री की, मेरे दोस्तों का, फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों का, और मेरे बिज़नेस फ्रेंड्स जो हैं जिन्होंने आगे बढ़कर हमेशा हमारा साथ दिया है. और उनकी मदद से और हमारी मेहनत से हम सैकड़ों बेटियों के लिए कुछ कर पाए हैं. तो ऐसे में आपने जैसे कहा अभी 17 सालों से किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं सोसाइटी में? देखिए, समाज में बदलाव तो बहुत आ गया है. हम लोगों ने जब शुरू किया था तो बहुत फैशनेबल लगता था ये लोगों को. ओह, NGO में बेटी की बात करते हैं, इट वाज अ वेरी एलियन थॉट. लेकिन ओवर द पीरियड समाज बदला है. अभी जो जागरूकता आई है बेटी के प्रति पूरे देश में, और मुझे खुशी है कि छोटी जगहों में, गाँव में, छोटे शहरों में भी अब बेटी के महत्व को लोग समझने लगे हैं. और मैं समझता हूँ कि बेटी जो है वो बेटों से किसी तरह कम नहीं है, और क्षेत्र चाहे कोई भी हो. अब तो स्पोर्ट्स में भी वो उतना ही बीट करती हैं, आर्मी में भी उतना करती हैं, बॉक्सिंग में भी करती हैं. तो वो सेक्स का जो डिवीज़न था, वो दीवार जो है गिर गई है अभी. ऐसे में हमने आज देखा है कि बहुत सारे टीवी सेलेब्स आए हैं, अनुष्का और आदित्य भी वॉक करने वाले हैं, बच्चियाँ भी आई हुई हैं. ओवर एंड ओवरऑल किस तरह का एक शो होने वाला है? देखिए, क्या है कि हमारे को एक आई थिंक ये मैं कहूँगा वरदान है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो एक परिवार की तरह हैं. और जब कभी भी हमने उनको किसी भी अच्छे कार्य के लिए बुलाया, वो भाग के जुड़ जाते हैं. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे लोग साल दर साल, आपने देखा होगा 17 साल से ये सब इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर एक उत्सव की तरह इसको हमारा मनाते हैं और हमारा साथ देते हैं. ऐसे में सास बहू और बेटिया की टीम भी बीते 15 सालों से ये कवर करते आया है. किस तरह से आप देखते हैं इसे? आज तक और सास बहू और बेटियों का ताल्लुक़ मेरे से बहुत पुराना है. 21 और या 23 साल पुराना है. आप 17 साल पुराने हैं, लेकिन आज तक से मेरा 23 साल पुराना रिश्ता है. और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छी कवरेज करते हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, बनाते हैं, और टेलीविज़न इंडस्ट्री को आप उजागर करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. लास्टली सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, क्योंकि जो इवेंट है, कॉज है, वो बहुत ही अच्छा है. सो क्या उम्मीदें रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी क्या एक अलग इनिशिएट हो सकता है? फ़िलहाल हमने ये 300 लड़कियों जिनको हमने अडॉप्ट किया है,
इनकी एजुकेशन का हम ख्याल रख रहे हैं। हम जब भी कोई ऐसी कोई सामने परिस्थिति आती है जहाँ कोई किसी को आवश्यकता होती है, तो फिर हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसे अपना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई और चीज़ हमारे सामने आई तो हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं।